کہ برالر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں معمولی بہتری، مرغیا گوشت 15 روپے سستا، فی کلو 579 روپے ہو گیا۔ انڈوں کی قیمت میں 2 روپے اضافہ 266 روپے فی درجن ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ عبدالقادر اپڈیٹ کیجیے۔ عبدالقادر سے اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ برالر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی معمولی بہتری ہے اور مرغیا گوشت 15 روپے سستا ہو گیا ہے۔ فی کلو 579 روپے قیمت ہو چکی ہے۔ انڈوں کی قیمت میں 2 روپے اضافہ 266 روپے فی درجن قیمت ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کے لیے عبدالقادر سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ عبدالقادر مجھے اگر سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ عبدالقادر سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ برالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور اس کی قیمت 579 روپے ہو گئی ہے۔ تکنیکی وجوہات کی بنا پر عبدالقادر سے رابطہ منقطع ہوا تھا، اب رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عبدالقادر اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، آج برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو برائلر گوشت کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مہنگا برائلر جو ہے لوگوں کی جانب سے اس کی خریداری جو ہے وہ ترک کی گئی ہے، جس کے بعد اب قیمتوں میں کمی ہونے لگی، کیونکہ گزشتہ ہفتے برائلر کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان رہا تھا اور اب جو ہے برائلر کی قیمتیں جو ہے وہ غیر معمولی طور پر کم ہونے لگی ہیں۔ 15 روپے فی کلو تک آج برائلر کی قیمتیں کم کی گئی ہیں۔ 594 روپے فی کلو سے قیمتیں کم کر کے 579 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہیں، جبکہ زندہ برائلر جو ہے 10 روپے فی کلو تک سستا کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 378، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 386 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اور واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ 619 روپے فی کلو تک جو ہے وہ پہنچا دی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے برائلر ہر شہری کی قوت خرید میں نہیں رہا تھا اور اس کی خریداری جو ہے وہ غیر معمولی طور پر جو ہے وہ کم ہوئی تھی، کیونکہ شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری کم کی گئی تھی۔ برائلر بیف اور مٹن جو ہے وہ اس کی قیمتوں میں جو ہے وہ آ چکا ہوا تھا، اس کی لسٹ میں آ چکا تھا۔ شہریوں کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا تھا کہ 800 روپے فی کلو جو ہے بیف کی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں، جبکہ برائلر جو ہے وہ 650 ساڑھے 600 روپے تک پہنچ چکا تھا، جس کے بعد شہریوں نے برائلر جو ہے وہ خریدنا کم کر دیا تھا اور اب قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھنے کو مل رہا تھا۔ دوسری جانب انڈوں کی قیمتیں جو ہیں اس میں مسلسل جو ہے وہ استحکام دیکھنے کو مل رہا تھا۔ تاہم آج جو ہے سپلائی متاثر ہوئی ہے فارمی انڈوں کی، جس کے بعد قیمتوں میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ 266 روپے فی درجن آج قیمت مقرر کی گئی اور انڈوں کی قیمت 7,860 روپے مقرر کی گئی انڈوں کی پیٹی کی۔ اور اس حوالے سے جو پولٹری ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ پولٹری مصنوعات کی جو پیداواری لاگت ہے اس میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ پیداوار میں کمی کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق جو ہے طے کی جاتی ہے۔ برائلر جو ہے اس کی ڈیمانڈ میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر۔ شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، یوٹیلٹی سٹورز سے سستا گھی، برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل غائب۔ سستے سٹورز کے سستی اشیاء کے ریکس خالی ہو چکے ہیں۔ صارفین کی بڑی تعداد یوٹیلٹی سٹورز سے مایوس لوٹنے لگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز گھی، برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل نایاب ہو گیا۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز کے ریکس سستی اشیاء سے خالی ہو گئے۔ شادمان، شمع سٹاپ، ریلوے ہیڈ کوارٹرز، گڑی شاہو، سکھنہر جی ٹی روڈ، باغبان پورہ اور مزنگ یوٹیلیٹی سٹورز کو ایک ماہ سے سستے گھی کی قلت کا سامنا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری کے لیے آنے والے مایوس لوٹنے لگے۔ خریدار کہتے ہیں سستا گھی تو درکنار، برانڈڈ گھی بھی دستیاب نہیں۔ مارکیٹ سے مہنگا گھی خریدنا پڑ رہا ہے۔ ایک ماہ سے یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا رہے ہیں۔ گھی لینے کے لیے آتے ہیں، گھی یہاں نہیں ہوتا، اب تو بالکل برانڈڈ بھی نہیں ہے، چلو وہی لے لیں گے لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ کس طرح پھر گزارا کر رہے ہیں؟ گزارا اب یہی کوئی آدھا کلو پاؤ لے کے بازار سے گزارا کر رہے ہیں کہ شاید یہاں آ جائے گا تو لے لیں گے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آتے ہیں خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ سر میں نا چوک بابا اعظم سے آیا ہوں۔ پہلے میں آیا ہوں حمزہ ہاسپٹل کے پاس شمع کے نیچے، ادھر گھی پوچھا ہے، ادھر سے بھی نہیں ملا۔ پھر میں اب ادھر شادمان میں آیا ہوں، ادھر بھی دیکھا ہے، ادھر بھی گھی نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مہنگا بھی نہیں، سستا دونوں بھی نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک ماہ سے سستے گھی کی سپلائی متاثر ہے، جس کی وجہ سے صارفین کا یوٹیلیٹی سٹورز سے خریداری کا رجحان بھی کم ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔
महंगाई ने मुहावरे भी गलत साबित करना शुरू कर दिए। दाल जड़ी निबे नाल जैसी बातें माजी का हिस्सा बन गईं। 2.5 से 3 माह के दौरान होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें 18 से 40% तक बढ़ गईं। सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। दालों के बारे में उमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इनके बाइस आम आदमी के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना कदरे आसान हो जाता है, लेकिन अब महंगाई की लहर ने दालों की कीमतें भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी हैं। गुज़श्ता 2.5 से 3 माह के दौरान थोक मार्केट में दाल चने के निर्ख 190 रुपये से बढ़कर 250, दाल मसर के निर्ख 180 से 260, दाल मूंग के निर्ख 190 से 260 और माश की धुली दाल के निर्ख 370 रुपये से बढ़कर 440 रुपये फी किलो तक जा पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा तकरीबन 35% इजाफा सफेद चने के निर्खों में रिकॉर्ड किया गया है, जो इस वक्त होलसेल मार्केट में 350 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। कहा यही जाता था कि कुछ ना मिले तो दाल ही खा लें, लेकिन दालों की इस वक्त ये पोजीशन है कि ये महंगी तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं। पहले तो ये दालें भी मिल जाती थी, अब तो ये दालें भी नहीं मिलती। लगता है ये सारी वहाँ में किसी जंगल में जाकर ना घास और तूड़ी वंड वगैरह खाएगी जो जानवर खाते हैं। दाल पकाते थे पहले, थोड़ा सा पानी कम डालते थे, अब पानी ज़्यादा डालते होंगे, अब ये पोजीशन बन गई है। इस सूरत हाल को डॉलर की कीमत के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क सालाना तकरीबन 1 अरब डॉलर की दालें दरामद करता है, जो मुल्क की ज़रूरियात का 70% पूरा करती हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ मुल्क में दालों की पैदावार में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। इस सूरत हाल के बायस मार्केट फोर्सेस दालों के निर्खों में मजीद इजाफे के खदशात जाहिर कर रही हैं। महंगाई की बहुत बड़ी लहर आई है और हमें तो खदशा ये है कि अल्लाह न करे कि रमज़ान में जो माल की खपत है वो पूरी ना हो सके। आइंदा क्या होना है कोई पता नहीं है। ये स्टॉकिए जो हैं ये सारा कुछ स्टॉक करके हैं, बदनाम हम हो जाते हैं हर लिहाज में। परचून में फ़रोख्त पर दालों के रेट्स में 10 से 15% तक का मजीद इजाफा हो जाता है। इस तमाम सूरत हाल के पैदा होने में हुकूमत की कोताही और गैर जिम्मेदारी को तो बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सच तो ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हम अपनी तमाम तर इखलाकी इक़दार को ही फरामोश कर चुके हैं। कैमरामैन उमर फजल के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महकमा बल्दियात पंजाब ने 402 यूनियन कौंसल्स पर मुश्तमिल लाहौर का नया नक्शा तैयार कर लिया। 5 रंगों की लाइनों से बाउंड्री वॉल को नुमाया किया गया। नया नक्शा इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के बाद तैयार किया गया। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के बाद नया नक्शा बल्दियाती एक्ट 2022 के मुताबिक बनाया गया। 6 साल बाद लाहौर के नए नक्शे में 128 नई यूनियन काउंसिल्स शामिल कर ली गईं। नक्शे के मुताबिक लाहौर यूनियन काउंसिल्स के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बन गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए यूनियन काउंसिल्स के नए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। पुराना नक्शा 274 यूनियन काउंसिल्स जबकि नया 402 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। लाहौर का नया नक्शा 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसके मुताबिक तहसील सिटी 1 से 146 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। तहसील शालीमार 147 से 238 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। तहसील कैंट 239 से 260 यूनियन काउंसिल्स और तहसील मॉडल टाउन 261 से 368 यूनियन काउंसिल्स जबकि तहसील रायवंड 369 से 402 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। नक्शे में मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में चीफ ऑफिस यूनिट्स रायवंड और काहना भी शामिल हैं। महकमा बल्दियात पंजाब ने मंजूरी के बाद नक्शे की कलर छपाई के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट लॉ ब्रांच भिजवा दिया, जहां से नए नक्शे का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब में 4.5 साला दौरे इक़्तिदार में बेशतर मंसूबे एलानात तक महदूद रहे। निगरान हुकूमत को नए मंसूबे शुरू करने का इख्तियार नहीं। अरबों रुपए मालियत के प्रोजेक्ट्स फाइलों में बंद हो गए। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट्स को ब्रेक लग गई। चौधरी परवेज इलाही के दौरे इक़्तिदार के आखिरी अयाम में भी बेशतर मंसूबे शुरू ना हो सके। 2018 से करीम ब्लॉक फ्लाई ओवर और अंडरपास की बाज़गश्त है। 5 साल के दौरान करीम ब्लॉक फ्लाई ओवर मंसूबे पर एक ईंट भी ना लग सकी। भेकेवाल मोड़ अंडरपास व फ्लाई ओवर मंसूबा भी ऐलानात तक महदूद रहा। बरकत मार्केट के मकाम पर फ्लाई ओवर और अंडरपास का मंसूबा भी लटक गया। शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे का आगाज किया गया। उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज और परवेज इलाही की हुकूमत ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की दोबारा मंजूरी दी। तीनों हुकूमतों में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। परवेज इलाही के दौर में अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे का ऐलान किया गया, ताहाल मंसूबे का टेंडर नहीं हो सका। जौहर टाउन में एंटरटेनमेंट पार्क बनाने का मंसूबा भी फाइलों में बंद है। MM आलम रोड की रीडिजाइनिंग का मंसूबा भी फाइलों से बाहर ना आ सका। LDA ने लिबर्टी मार्केट में स्काई लाइन प्रोजेक्ट का मंसूबा भी बनाया। तखमीना लागत ज्यादा होने के सबब मंसूबा नाकाबिले अमल करार दे दिया गया।
निगरान हुकूमत को नए मंसूबे शुरू करने का इख्तियार नहीं दिया गया, ताहम अब आने वाली हुकूमत इस अमर का फैसला करेगी कि इन मंसूबों को शुरू किया जाए या नहीं। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। कब्रिस्तानों की सिक्योरिटी और चार दीवारी बड़ा मसला बन गई। शहर की 274 यूनियन कौंसल्स में 845 कब्रिस्तानों की बहाली और 4 बड़े सरकारी कब्रिस्तानों की तामीर इल्तवा का शिकार। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न अफसरान पर बरहम, 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। कब्रिस्तानों की तामीर व बहाली पर सालाना 4 अरब रुपए के फंड्स इस्तेमाल ना हो सके। तामीर व बहाली की लागत का तखमीना 4 अरब से बढ़कर 6 अरब रुपए तक पहुंच गया। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि 80% कब्रिस्तान जनाजगाह, वुजू खाना, गुसल खाना और 4 दीवारी से महरूम हैं। शहर की 274 यूनियन कौंसल्स में 845 कब्रिस्तान मौजूद हैं। 4 नए कब्रिस्तानों की 1654 कनाल 14 मरले सरकारी अराजी पर 4 दीवारी ना हो सकी। भाई कोट में 127 कनाल 11 मरले पर कब्रिस्तान तामीर ना हो सका। बेदियां रोड पर 276 कनाल 6 मरले पर कब्रिस्तान की तामीर रुकी हुई है। बाबू साबू में 525 कनाल अराजी की 4 दीवारी भी इल्तवा का शिकार है। कसूर रोड पर 825 कनाल 17 मरले अराजी पर भी तामीर रोक दी गई। शहर में 135 कब्रिस्तान जनाजगाहों और वुजू खानों से महरूम हैं। 170 कब्रिस्तान तामीर व मुरम्मत के मुंतजिर हैं। 198 कब्रिस्तानों में दाखिली गेट और रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीजन का अफसरान पर बरहमी का इजहार, 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहर खामोशा अथॉरिटी मैयत के गुस्ल और कब्रिस्तान में मुंतकली समेत हर किस्म की सहूलत फराहम करे। वर्किंग पेपर और फंड्स मौजूद हैं। बगैर किसी रुकावट के काम मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। काम करो वरना घर जाओ। कमिश्नर और डीसी लाहौर ने LWMC अमले को साफ साफ बता दिया। हर डिस्पोजल स्टेशन पर कंटेनर्स खाली करने का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डीसी लाहौर की LWMC दफ्तर आमद। शहर में सफाई के इंतजामात से मुतालिक अफसरान से ब्रीफिंग ली। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि शहर में सफाई की जिम्मेदारी LWMC की है। हर डिस्पोजल स्टेशन को मुकर्रर वक्त पर खाली किया जाए। जहाँ जहाँ पे इनके वेस्ट डिस्पोजल स्टेशन हैं, उन वेस्ट डिस्पोजल स्टेशन के ऊपर टाइमिंग्स जो हैं वो मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या तो टाइम कंपनी वालों को पता है या उस महल्ले वाले को पता है जहाँ से उठाया जा रहा है। अदरवाइज एज अ थर्ड पर्सन बीइंग अ मीडिया पर्सन लेट्स सपोज जो एक है उसको नहीं पता। तो अगर 4 बजे तक एक डिस्पोजल स्टेशन साफ़ होना था और वो नहीं साफ हुआ तो अगर उस पर टाइम लिखा होगा तो हमें वहाँ से मेंशन हो जाएगा। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि शहर से रोजाना 6000 टन कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। सफाई यकीनी बनाने के लिए मीडिया के जरिए आगाही इंतहाई जरूरी है। कंज्यूमर्स को पुल इन करना है कि वो किस तरह से अपनी वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, और इसमें आप लोगों का, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोग किस तरह से ये मैसेज को आउटरीच करते हैं और लेके जाते हैं लोगों तक। CEO LWMC बाबर साहब दीन का कहना था कि ज़िले इंतजामिया के अफसरान की तजावीज़ पर सफाई का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सबसे गुजारिश होगी कि वेस्ट की रिडक्शन के लिए हम बीइंग सिटीजन्स ऑफ लाहौर जो कर सकते हैं वो तमाम करें और LWMC के साथ मिल के, हमारे वर्कर्स के साथ मिल के करें, और इंशाल्लाह हम कमिश्नर साहब की सरबराही में इंश्योर करेंगे कि लाहौर को एक साफ़ सुथरा शहर जो है वो बनाया जा सके। वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से कमिश्नर लाहौर का कहना था कि रूडा के साथ मिलकर नई लैंडफिल साइट भी बना रहे हैं। महकमा एनर्जी के साथ मिलकर जल्द वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। कैमरामैन जिशान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। तनख्वाहें दो और महकमे में वापस बुलाओ। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 350 मुलाजमीन का इस्तांबुल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने सफाई कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स और विजिलेंस ऑफिसर्स के खिलाफ नारेबाजी की। रिपोर्ट देखिए। सफाई कंपनी के 350 सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। 350 मुलाजमीन को LWMC दूसरे महकमों में भिजवा दिया गया। 22 रोज गुजर गए, मुलाजमीन को तनख्वाहें भी ना मिल सकी। 350 मुलाजमीन ने कमिश्नर लाहौर और CEO LWMC से मामला हल करने की इस्तदा कर दी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 350 मुलाजमीन का इस्तांबुल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने सफाई कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स और विजिलेंस अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की। सफाई कंपनी के मुलाजमीन का कहना है कि तमाम अफसरान के पास गए, किसी ने बात नहीं सुनी। हमें हमारा हक दिया जाए। मैं सुपरवाइजर बतौर UC 18 का सुपरवाइजर हूँ और वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, तो मुझे इल्म ही नहीं
कि मेरा नाम किसने दिया है और किसने ऐसे कर दिया है, और जेडो के पास गया हूँ, जेडो साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, एएम के पास गया हूँ, एएम साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, तो फिर किसको पता है? तकरीबन 350 लोग हैं जो हमें यहाँ से निकाल दिए गए हमें कंपनी से विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एलिगेशन। हमें कुछ नहीं बताया गया कि हमें क्यों निकाला गया। 30 दिन हो गए आज हमारी तनख्वाह बंद है, हमें पिछले माह की तनख्वाह नहीं मिली। हम सब गरीब लोग हैं, हम पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। तर्जमान LWMC उमर चौधरी का कहना है कि 1-2 रोज़ में तनख्वाहें मुलाजमीन के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। कैमरामैन जिशान के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। सब्जियां और फल आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर। प्याज 230, लहसुन 500, अदरक 620 रुपये फ़ी किलो, करेले 330, मेथी 90 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। सेब 380 रुपये, जबकि केला 220 रुपये फ़ी दर्जन बेचा जाने लगा है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम के लिए मुश्किलात में भी इजाफ़ा हो रहा है। आपको बताएं कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और आवाम की कुव्वत ख़रीद से तमाम अशिया बाहर होती जा रही हैं। प्याज 230, लहसुन 500, अदरक 620 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा। करेले 330, मेथी 90 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान को पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए अहकामात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि 90 दिन का इंतज़ार करूँगा, अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर देखूँगा। गवर्नर एक ओहदा है, इसकी इज्जत करनी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक तारीख देने के लिए दरखास्त। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समात की। दरखास्त गुजार की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने 10 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर की गई। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर आईनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अदालत सदर पाकिस्तान को इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक हिदायत जारी करे। जस्टिस जवाद हसन ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर चुके हैं। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, सब मेरे अहकामात मानते हैं। घबराने की बात नहीं, जिस दिन कोई इनकार करेगा देख लूंगा। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब में इंतखाबात का मामला। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में अहम इजलास हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह के लिए अदालत से रजू करने का फैसला किया गया। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में अहम इजलास, जिसमें IG, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, DG लॉ इलेक्शन कमीशन और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक अफराद ने आइनी और कानूनी तजावीज़ पेश की। इजलास के शुरका ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वजाहत तलब करने पर इत्तिफाक किया। ज़राए का कहना है कि इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह के लिए अदालत से रजू करने का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। PTI के जेल भरो तहरीककार का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक जेल भरो तहरीक में मरहलावार गिरफ्तारियां दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का तरीकाकार तय कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फोकल पर्सन एजाज चौधरी को तमाम सूबाई और डिवीजनल सदूर से डाटा लेने की हिदायत। पार्टी ज़राए के मुताबिक जेल भरो तहरीक में मरहलावार गिरफ्तारियां दी जाएंगी। इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान होते ही बड़े शहरों से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में लाहौर से 200 कारकुन और 5 लीडर्स गिरफ्तारियां देंगे। दूसरे मरहले में पेशावर से तहरीक इंसाफ के 200 कारकुन और 5 लीडर्स जेल जाएंगे। जेल भरो तहरीक के तरीकाकार के तहत रोजाना की बुनियादों पर एक शहर से गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी। पाकिस्तान के बड़े शहरों से कम अज कम 3000 कारकुन जेल भरो तहरीक का हिस्सा होंगे। फोकल पर्सन एजाज चौधरी का कहना है कि तमाम सूबों और अजला में जेल भरो तहरीक की तैयारियों का जायजा लेकर रिपोर्ट जल्द चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के बाद दीगर सूबों का भी दौरा करूंगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं साइफर के बयानिए की मौत हो चुकी, इसका जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए। कौम को जहनी मरीज बनाने की कोशिश की जा रही है। नून लीग ने ई-कॉमर्स और IT सेक्टर में काम किए, मुकाबला करना है तो मुल्क की तरक्की में करें। रिपोर्ट देखिए।
मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटरीट में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब भर के पार्टी के नौजवान रहनुमाओं का इजलास। मरियम नवाज ने पार्टी की यूथ डेवलपमेंट पॉलिसी पर इजहार ख्याल के बाद इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि मुकाबला इस बात पर करें कि मुल्क की तरक्की के लिए आपने कितना काम किया। आपके पास कोई माशी प्लान नहीं, सिर्फ जलाओ घेराव है। आपने झूठ का नाम बयानिया रख दिया है। ना आपके पास कोई माशी प्लान है, ना आपके पास कोई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ना आपने कोई प्रोजेक्ट दिया। मेगा प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, आपने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं दिया। कोई एक कॉलेज, कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक मोटरवे, कोई एक एक्सप्रेसवे, कोई एक बिजली का मंसूबा, कोई एक सीपेक जैसा कोई मंसूबा निकाल के दिखा दें, कुछ भी नहीं। झूठ का नाम बयानिया रख दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि कौम को ज़हनी मरीज बनाने की कोशिश की जा रही है। साइफर के बयानिए की मौत हो चुकी, इसका जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए। गलती का एहसास होने पर अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ऐसा नहीं लगता। आपने पहले एक बयानिया बना दिया कि हम कोई ज़हनी गुलाम तो नहीं है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमरीका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, डोनाल्ड लू ने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद आपने लॉबिंग फर्म्स, आपको पता चला कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आपने फिर लॉबिंग फर्म्स हायर की, अमेरिकन टेलीविज़न को और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। उसमें आपने कहा कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई साजिश हुई। इजलास में परवेज़ रशीद, अफनानुल्लाह, अज़मा बुखारी, तलाल चौधरी और हिना परवेज़ भट्ट समेत दीगर ओहदेदार शरीक हुए। समनाबाद में एलडीए का नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 25 इमलाक को सरबा मुहर कर दिया गया। इमलाक मालिकान को सालाना और मुस्तकिल फ़ीस की अदायगी के अहकामात भी जारी। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। डीजी एलडीए आमिर अहमद खान की हदायत पर एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं और नादहिंदा इमलाक के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से रोजाना 20 से ज्यादा इमलाक को औसतन सर्व मुहर किया जा रहा है और एक हफ्ते के दौरान एलडीए की जानिब से 150 से ज्यादा इमलाक को सर्व मुहर कर दिया गया है। ये चीफ टाउन प्लानर असदुज़्ज़मा की सरबराही में आज भी ऑपरेशन किया गया है, जिसमें समनाबाद में शोबा टाउन प्लानिंग जोन 1 की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान समनाबाद में वाक़े 25 इमलाक जो कि कमर्शियल फीस की मद में नादहिंदा थी उनको सील कर दिया गया है। एलडीए की जानिब से इन इमलाक मालिकान को सालाना और मुस्तकिल फीस की अदायगी के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। सीटीपी असदुज़्ज़मा का कहना है कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़े कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के अहकामात की रोशनी में मॉडल सड़कों पर जो तजावुज़ात हैं उनका भी खात्मा किया जा रहा है और ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। शुक्रिया सैन। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है, इलेक्शन न करवाकर बहुत बड़ा जुर्म किया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं 24 घंटों के नोटिस पर जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो सकता है। हमाद अज़हर ने कहा कि मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन न हुए तो हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी। पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद उमर, फवाद चौधरी और हमाद अज़हर की ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को 4 रोज गुजर गए हैं। अदालत ने 2 टोक कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। गवर्नर ने ताहाल इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। पूरी कौम देख रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत को घसीट कर बैलेट पेपर तक लेकर जाएंगे। पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के कि इमरान खान का सियासी मुकाबला न करना पड़े। फवाद चौधरी का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख ले, कानून ने रास्ता लेना है। गवर्नर अगर आइन को नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर को गवर्नर्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आइनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आइनी जो प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाए
क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़े तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। हमाद अजहर का कहना था कि अदालती फैसलों का एहतराम नहीं हो रहा। मईशत को मिफ्ताह इसहाक डार ने तबाह किया। शौकत तरीन का क्या जुर्म है? अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो हुकूमत की अहम शख्सियात पर तौहीन अदालत भी लगेगी। मईशत मिफ्ताह ने तबाह की, मईशत इसहाक डार ने तबाह की और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, वरना तौहीन कंटेम्प्ट जो है, तौहीन अदालत का जो कानून है वो आपके सामने मौजूद है। पीटीआई की क़यादत का कहना था कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे तो आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देने में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पीटीआई ने पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से भी बुनियादी पॉलिसी तय कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम मुशावरती इजलास। पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने इजलास में शिरकत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स की जानब से इलेक्शन की तारीख न देने के बाद की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आइनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। सदर ममलकत के आइनी किरदार अदा करने के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। इमरान खान ने सदर ममलकत से होने वाले टेलीफोनिक राब्ते बारे भी इजलास को आगाह किया। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की जानब से इलेक्शन की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। दूसरी जानब पीटीआई ने पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से बुनियादी पॉलिसी तय कर ली। जनूबी पंजाब के साबिक अरकान पंजाब असम्बली को ही मैदान में उतारने का फैसला। पार्टी बयानिया का साथ देने वाले अरकान पंजाब असम्बली ही आइंदा इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। जनूबी पंजाब से 2018 के इलेक्शन में नाकाम होने वाले उम्मीदवारों पर नजरसानी का फैसला किया गया। पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने इस हवाले से हारे हुए हलकों में सर्वे की हदायत कर दी। जनूबी पंजाब का पार्लिमानी बोर्ड आइंदा चंद रोज में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगा, जिसकी रोशनी में पार्टी चेयरमैन इमरान खान टिकटों की तकसीम का हतमी फैसला करेंगे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम की कुव्वत खरीद ख़त्म होती जा रही है। हुकूमत दालें, ऑयल और बिजली 70 से 80% महंगी करने जा रही है। पीटीआई के जेल रोड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। दुनिया के बरक्स यहाँ ऑयल और दालों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। लोगों की कुव्वत खरीद दम तोड़ चुकी है। पहले सैलाब और अब मईशत और दहशत गर्दी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताखीर की जा रही है। पहले सैलाब के पानी को इंटेंशनल रोका गया, लेफ्ट बैंक आउट फॉर ड्रेन रोकी गई और मंचर झील के सारे स्पिलवे रोके गए ताकि पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे, वजह बनाई जाए। दूसरी वजह यहाँ पे मैं पिछली बार भी कहता था कि ये आर्टिफिशियल किस्म की एक दहशतगर्दी क्रिएट की गई। और तीसरी बात, ये जो आप कह रहे दहशतगर्दी हुई है, इकनॉमिक दहशतगर्दी, इस इकनॉमिक दहशतगर्दी को जवाज़ बना के इलेक्शन डिले करने की कोशिश हो रही है। जमशेद इकबाल चीमा का मजीद कहना था कि पूरी दुनिया में तमाम ममालिक ने एक्सपोर्ट बढ़ाकर तरक्की की, लेकिन नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की एक्सपोर्ट कम की है। कैमरामैन शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। लेस्को ने रिकवरी मुहिम तेज कर दी। बिल अदा न करने वाले मुतअद्दिद सरकारी दफातर के कनेक्शन मुनक़ता। लेस्को चीफ ने तमाम फील्ड ऑफिसर्स को रिकवरी बेहतर करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट देखिए। लेस्को ने नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। लेस्को ने रिकवरी मुहिम भी तेज कर दी है। लेस्को गुलबर्ग डिवीजन की बिजली के नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। नादहिंदगी पर मुतादिद सरकारी दफातर के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। वासा हेडक्वार्टर फाइनेंस डायरेक्टर और विफाकी कॉलोनी में PWD के दफातर के कनेक्शन काट दिए गए। करोड़ों रुपए नादहिंदगी पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स और थाना नसीराबाद की बिजली भी काट दी गई। लेस्को इंतजामिया के मुताबिक महकमा जात लेस्को के 50 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा हैं। प्राइवेट नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की गई है। SE साउथ सर्कल जफरुल्ला सांगी ने कार्रवाई की निगरानी की। एक्सियन गुलबर्ग मोहम्मद ताहिर का कहना है कि बिजली के बकायाजात की वसूली को यकीनी बनाया जाएगा। वाजिबात की अदायगी के बाद ही इन दफातर की बिजली बहाल की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मेरिट नज़रअंदाज सिफारिश काम कर गई। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट के बरक्स वाइस चांसलर्स लगाए जाने का इंकशाफ। लाहौर न्यूज़ ने सूबा पंजाब की 5 यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट हासिल कर ली।
शोबा तिब में भी सफारशी कल्चर, मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं। हमजा शहबाज शरीफ के दौर में खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को वीसी लगाया गया। 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मेरिट के बरक्स वाइस चांसलर की तैनाती का इंकशाफ हुआ। मेरिट पर आने वाले सीनियर प्रोफेसर्स नजरअंदाज किए जाने पर तशवीश में मुब्तला रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जहां दाखिले के लिए मेरिट इंतहाई सख्त होता है, वहां भी वाइस चांसलर मेरिट के बरक्स तैनात किया गया। मेरिट लिस्ट में 35 नंबर हासिल करने वाले एहसन वहीद राठौर को वाइस चांसलर लगाया गया। प्रोफेसर असद असलम को मेरिट लिस्ट में 75 नंबर मिलने के बावजूद नजरअंदाज किया गया। शोबा तिब में एक मकाम रखने वाली दरसगाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी मेरिट के साथ खिलवाड़ किया गया। 35 नंबर हासिल करने वाले प्रोफेसर महमूद अयाज को वाइस चांसलर बना दिया गया। प्रोफेसर असद असलम 75 और जफरुल्लाह चौधरी 74 नंबर लेकर भी वीसी ना बन सके। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी खिलाफ ज़ाब्ता वाइस चांसलर तैनात हुआ। मेरिट लिस्ट में 74 नंबर लेने वाले जफरुल्लाह चौधरी को वीसी बना दिया गया, जबकि 75 नंबर लेने वाले प्रोफेसर असद असलम को फिर नजरअंदाज कर दिया गया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी सिफारशी कल्चर को परवान चढ़ाया गया। मेरिट लिस्ट में 36 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर आने वाले खालिद मसूद गोंदल को वाइस चांसलर बनाया गया। प्रोफेसर असद असलम 75 नंबर लेकर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर ना बन सके। सिर्फ रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर को 74 नंबर लेने के बाद मेरिट पर वाइस चांसलर लगाया गया। जराये का ये भी कहना है कि काबीना की मंजूरी के बगैर वाइस चांसलर्स की तैनातियां की गईं, जो कानून के खिलाफ हैं। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और मालूमात के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइन के साथ।